the physics class. So related to the previous topic, today's topic is capacitor. In the previous lecture we discussed about capacitance of a conductor. एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, तो आज एक अरेंजमेंट आ रही है दैट इज कैपेसिटर. ओके, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कि अ कंडक्टर कैन स्टोर द चार्ज. एक कंडक्टर सिंगल हो तो वो चार्ज को स्टोर कर सकता है कुछ लिमिट तक. ओके, but what will happen if we have two conductors separated by a medium? Suppose we have two plates, metallic plates, conducting plate है. एक ये प्लेट कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये है, कंडक्टर ये है. This is conductor 1, this is conductor 2. As we know, a conductor can store the charge. As we know, a conductor can store the charge. Okay, so it means this connector can store the charge, this connector can also store the charge. If we have two conductors separated by an insulating or dielectric medium, it means we have two conductors separated by a medium. In this medium, this can be an insulated or dielectric medium. Okay, this is insulating or dielectric medium. Insulating or dielectric medium. So this is called a capacitor. Now it becomes a capacitor. So arrangement of two capacitors separated by an insulating or dielectric medium, that is called a capacitor to store the charge. So what is the capacitor or condenser? It can also be called arrangement of two conductors separated by an insulating or dielectric medium to store charge. एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें आप दो कंडक्टर लेते हो, कुछ गैप पे रखते हो, बीच में कोई इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाइक है और वो चार्ज को स्टोर करता है. सारा अरेंजमेंट दैट बिकम्स अ कैपेसिटर. वो क्या बन चुका है? वो एक कैपेसिटर बन चुका है. ओके, सो व्हाट इट विल बी, ये कैसे चार्ज को स्टोर करेगा वो हम देखते हैं. अब क्या करो, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो. एक बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया. वी हैव अ की. व्हेन वी स्विच ऑन द की, charges, this plate will be having positive charge and this plate will be having negative charge on both the surfaces in and out. So after removing the batteries, now battery को disconnect कर दो. charge will remain on these plates. इन connecting plates के ऊपर चार्ज रहेगा. इट मीन्स बैटरी कनेक्ट करने से पहले इन कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था. बैटरी कनेक्ट करने के बाद, डिसकनेक्ट करने के बाद इनके ऊपर चार्ज है. इट मीन्स दे हैव स्टोर्ड द चार्ज. इन्होंने चार्ज को क्या कर लिया? स्टोर कर लिया. तो एक अरेंजमेंट जो चार्ज को स्टोर कर लेता है बिकम्स अ कैपेसिटर और कंडेंसर. सो दिस इज नाउ कॉल्ड अ कैपेसिटर और कंडेंसर. दिस इज नाउ कॉल्ड अ कैपेसिटर और कंडेंसर. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटर और कंडेंसर. आई थिंक द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस. ओके, you have already understood. Now move on to the next topic. So what is the purpose of using capacitors? Capacitor mainly used for storing the charge. Capacitor mainly used for storing the charge in small space. So based on the shape of the capacitors, capacitor की shape के ऊपर अगर हम बात करें, there are different types of capacitor. One of them is parallel plate capacitor. एक बात क्लियर है कि हमें कैपेसिटर के लिए दो कंडक्टिंग प्लेट्स चाहिए. अगर वो दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स पैरेलल हैं आपस में तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. अगर दो प्लेट्स स्फेरिकल शेप में हैं तो वो स्फेरिकल कैपेसिटर है. अगर सिलेंड्रिकल हैं तो वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है. ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? दैट इज टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के टाइप.
So what are the types of capacitor? Look at here. Based on the shape I have already discussed. If we have एक कैपेसिटर में दो प्लेट होंगी, ये क्लियर है. अगर वो दोनों प्लेट्स पैरेलल हैं दूसरे के, सो दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. So this is called parallel plate capacitor. Okay, so if we have two plates in the form of sphere, means एक अंदर प्लेट है और एक बाहर है लेकिन है स्फीयर की शेप में, so this is called spherical capacitor. है इसमें भी दो ही जो कंडक्टर है, एक इनर एक आउटर, spherical capacitor. और अगर यही दो प्लेट्स सिलेंड्रिकल की शेप में, मतलब एक सिलेंडर आउटर और एक उसका इनर सिलेंडर, so this is cylindrical capacitor. This is called cylindrical capacitor. So we have three types of capacitor based on the shape. There are more types of capacitor in the higher classes. So if we have कैपेसिटर में दो प्लेट चाहिए अपने को कंडक्टिंग प्लेट, अगर दोनों कंडक्टिंग प्लेट दूसरे के पैरेलल है तो दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अगर दो स्फीयर प्लेट्स की फॉर्म एक दूसरे के ऊपर हैं, एक इनर एक आउटर, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर. अगर दो सिलेंड्रिकल की शेप में है, दैट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. दैट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. ओके, सो बट हमने जो डिस्कस करना है दैट इज ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. लेट अस डू the topic parallel plate capacitor. So now we are doing parallel plate capacitor. एक बात यहाँ समझने वाली क्या है कि अगर एक सिंगल कंडक्टिंग प्लेट, अगर एक सिंगल प्लेट ले लें, चार्ज को तो ये भी स्टोर करती है, हम इसको चार्ज दें. हमने सबसे पहले पढ़ाई है ये पिछले लेक्चर में कि चार्ज देते जाओ किसी प्लेट को, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा, तो ये चार्ज को स्टोर करता है. तो फिर हमें दो प्लेट्स लेने की जरूरत क्या है, कैपेसिटर बनाने की जरूरत क्या है. एक सिंगल प्लेट ही ले लो तो उसे कैपेसिटेंस तो उसका भी होता है चार्ज, तो वो भी स्टोर कर पाता है, और ये दो प्लेट्स भी चार्ज को स्टोर करने के लिए अरेंजमेंट है, तो एक के बजाय दो क्यों लिया. तो इसका पर्पज़ ये है कि कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए एक कंडक्टिंग प्लेट कम चार्ज को स्टोर कर पाएगी और दो की अरेंजमेंट ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएगी. वो क्या है तो देखिए कैसे इसका प्रिंसिपल है. नाउ द टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि किस प्रिंसिपल पर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वर्क करता है. ओके, तो सबसे पहले क्या ना, एक सिंगल कंडक्टर लेना, कंडक्टिंग प्लेट ए, कंडक्टर ए है मेरे पास, इसको हम चार्ज देते जाएं तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू V. चार्ज देते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज. इसको मैंने चार्ज दिया पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल क्या हो गया, इंक्रीज हुआ धीरे धीरे. ओके, इसको मैंने एक कूलम चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट. 2 कूलम देने पर हो गया 4 वोल्ट, 3 कूलम देने पर हो गया 6 वोल्ट, 4 कूलम देने पर हो गया 8 वोल्ट और 5 कूलम देने पर हो गया 10 वोल्ट. 10 वोल्ट इसका मैक्सिमम पोटेंशियल हमने मान लिया. भाई 10 वोल्ट से ज़्यादा इसका पोटेंशियल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब अगर आप और चार्ज दोगे तो इसको स्टोर नहीं करेगा. वो 10 वोल्ट मैक्सिमम पोटेंशियल हो गया तो उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएगा. 10 वोल्ट तक पोटेंशियल में जितना चार्ज स्टोर हो गया, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. ओके, तो चार्ज इतना इसके ऊपर रहा. तो अब मेरे पास क्या है कि इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट और चार्ज मैंने स्टोर किया हुआ है 5 कूलम. तो इस प्लेट के ऊपर मैंने कंडक्टिंग प्लेट है के ऊपर 5 कूलम का चार्ज स्टोर कर लिया और 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल. तो आगे क्या आप देखो, अगर मैंने इसके पास एक दूसरी प्लेट रख दी, कनेक्टिंग प्लेट बी, दैट इज अनचार्ज्ड, नियर रखी है इसके. हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज इंडक्शन, कि अगर आप एक स्फीयर के पास एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लाते थे तो पॉजिटिव उसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता था. ओके, तो इधर इंडक्शन, इधर पॉजिटिव है, तो इंडक्शन की वजह से इधर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और दूसरे एंड पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव. कंडक्टिंग प्लेट बी जो पहले अनचार्ज थी, इसके इंडक्शन की वजह से इधर नेगेटिव इकट्ठा हो गया और उधर क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेगा. अब बीच में इंसुलेटिंग मीडियम में ट्रैवल करके आ नहीं सकते, कनेक्टर में ट्रैवल करते हैं हमेशा, और पॉजिटिव अदर एंड में इकट्ठे हो जाएंगे. इसका पोटेंशियल कितना है अभी, 10 वोल्ट है. चार्ज कितना स्टोर है इसके ऊपर, 5 कूलम.
अब ये जो कंडक्टिंग प्लेट बी का नियर एंड है, ये एंड 1 है, ये एंड 2 है, तो जो उसका एंड 1 है वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव के इफेक्ट को कम करने का या ज़्यादा कम करेगा, अपोजिट होता है उससे। तो नेगेटिव चार्ज कंडक्टिंग प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करना चाहेगा। नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कनेक्टिंग प्लेट ए के पोटेंशियल को क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा। ओके, तो इसको डिक्रीज करेगा। लेकिन जो पॉजिटिव है बाहर वाला, वो पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। वन एंड वाला इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करना चाहेगा, ये इसको इंक्रीज करना चाहेगा। लेकिन ओवरऑल इफेक्ट किसका है, जो नजदीक रहेगा उसके। इस पॉजिटिव की नेगेटिव वाला इंक्रीज है, तो ज्यादा इफेक्ट इसका रहेगा। तो प्लेट बी रखते ही ए प्लेट का पोटेंशियल कुछ डिक्रीज होगा। पोटेंशियल डिक्रीज होगा, चार्ज ही डिक्रीज होगा। चार्ज तब फ्लो कर सकता है एक बॉडी दूसरे बॉडी तक जब कनेक्ट हो बॉडीज। बॉडी आपस में कनेक्ट नहीं है कनेक्टिविटी से, पोटेंशियल इफेक्ट कर सकता है। तो इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। तो ओवरऑल दोनों का जब इफेक्ट देखा आपने, मान लो तो 5 कूलम चार्ज के ऊपर, अब ये दोनों का रखने पर 5 कूलम चार्ज और पोटेंशियल कितना हो गया 8 वोल्ट। इसने 4 वोल्ट माइनस किया और इसने +2 वोल्ट किया, तो ओवरऑल इफेक्ट कितना रहा, -2 वोल्ट इसका कम हुआ, 2 वोल्ट कम हो गया। तो 2 वोल्ट कम हो कितना बचा, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट चार्ज में कितना स्टोर है, चार्ज इसके ऊपर 5 कूलम ही है, चार्ज कहीं नहीं गया, चार्ज वहीं का वहीं है। चार्ज तब फ्लो कर सकता है जब बॉडीज दो आपस में कनेक्ट हो। कनेक्ट है नहीं तो चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, सिर्फ पोटेंशियल पे इफेक्ट रहेगा। तो इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो कितना सकता है, 10 वोल्ट। इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करवाने के लिए 10 वोल्ट, 8 वोल्ट पे 5 कूलम है, तो अब 10 वोल्ट करने के लिए हमें और चार्ज दे सकते हैं हम इसको। तो हमने क्या किया, इसको 1 कूलम चार्ज और दे दिया, 6 कूलम देते ही 10 वोल्ट, क्योंकि 1 कूलम से कितना बढ़ रहा था, 2 वोल्ट बढ़ रहा था। तो 6 कूलम देने पर 10 वोल्ट हो गया। अगर ये प्लेट नहीं थी तो ये 10 वोल्ट में कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता था, 5 कूलम। अगर ये आपने प्लेट रखी है तो 10 वोल्ट में कितना स्टोर कर सकता है, 6 कूलम। तो कैपेसिटी बढ़ गई। पहले वही कंडक्टर 5 कूलम कर रहा था अकेला, अब 2 रखे हैं तो 6 कूलम करने लग गया। और भी हम कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम प्लेट बी के राइट साइड को अर्थ से कनेक्ट कर दें, अर्थ में से नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, वो भी वो जो फ्री हो। ये नेगेटिव फ्री नहीं है, ये नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगा हुआ तो इधर नहीं जा सकते। ये पॉजिटिव ऐसे नहीं मूव कर सकते। तो अर्थ से नेगेटिव चार्जेस आएंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे नेगेटिव चार्जेस, वो नेगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। वो नेगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर दिया और खत्म हो गया। एक्स्ट्रा नहीं आएंगे, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतने आएंगे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए आएंगे। एक्स्ट्रा के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जब न्यूट्रल हो गया तो हमने इस अर्थ कंडक्टर को हटा दिया। अब क्या, ये नेगेटिव इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा कितना, -4 वोल्ट। अब जो पॉजिटिव पहले बढ़ा रहा था वो है नहीं, 2 वोल्ट बढ़ नहीं रहा, तो ओवरऑल कितना डिक्रीज होगा, 4 वोल्ट डिक्रीज होगा। मतलब अर्थ से कनेक्ट करते ही 4 वोल्ट डिक्रीज होना चाहिए। तो अब 6 कूलम था और 10 वोल्ट था, अब 6 कूलम पे कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। ये तो पोटेंशियल इसका 4 वोल्ट कम हो गया ना अर्थ से कनेक्ट करते, इसका अकेले का इफेक्ट है। तो 6 कूलम 6 वोल्ट, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 वोल्ट। तो अब 10 वोल्ट के 2 कूलम आपने 8 कूलम करते ही कितना हो गया, 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट में कितना कूलम स्टोर कर रहा है, 8 कूलम। देखो जब आपका अकेला कंडक्टर था तो 10 वोल्ट पे 5 कूलम स्टोर कर पा रहा था। एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर इसके पास रखते ही 10 वोल्ट पे 6 कूलम स्टोर कर रहा है। उसी अनचार्ज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते ही वो 10 वोल्ट पे 8 कूलम स्टोर कर रहा है। इट मींस अगर आप एक कंडक्टिंग प्लेट के पास दूसरी कंडक्टिंग प्लेट रख देते हो विद कनेक्टिंग टू अर्थ, अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो उसका कैपेसिटेंस आप इंक्रीज कर सकते हो। इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, दैट्स व्हाई वी यूज कैपेसिटर। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर। एक सिंगल प्लेट यूज करो तो कैपेसिटेंस कम है, तो कैपेसिटर किस लिए यूज किया, फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए। सो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्यों बनाया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, उसका कैपेसिटेंस वो कैसे इंक्रीज करता है, ये अब हमारा टॉपिक था, प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, सो नेक्स्ट वी आर डूइंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया उसका कैपेसिटेंस क्या होगा।
ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स ली, प्लेट 1 एंड प्लेट 2. ओके, so what we are doing, the distance between the two plates is d. This plate is having positive charge and this plate is having negative charge. This is having plus q, this is having minus q. Okay, plate 1 is having plus q charge, plate 2 is having minus q charge. What हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में किया था, इफ वी हैव टू प्लेट्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. दोनों का एरिया ए है, एरिया ए, इसका भी एरिया ए है. तो प्रीवियस टॉपिक ध्यान रखने आपने, क्योंकि आगे यूज होते जाएंगे वन बाय वन करके. तो हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन थी एक कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज. सो दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आता था अगर उनकी इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, प्लस क्यू माइनस क्यू एरिया सेम, तो इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी हुई. दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. बट वी हैव टू कैलकुलेट द क्यू, कैपेसिटेंस, दैट इज क्यू बाय वी. तो हमें तो कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज Q बाय V. तो हमें Q चाहिए और V चाहिए, पोटेंशियल चाहिए. चार्ज तो चलो एज इट इज है, तो हमें पोटेंशियल चाहिए. पोटेंशियल अगर यहाँ पे निकल गया तो हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं. पोटेंशियल कैसे निकालें, एक हमने रिलेशन पढ़ा है, E इज इक्वल टू dV बाय dr, विद नेगेटिव साइन था, मैग्नीट्यूड में ले गए. इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का. पोटेंशियल को अगर हम V लिख लें, डिस्टेंस को D लिख लें, तो E इज इक्वल टू V बाय D बन जाता है. सो व्हाट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू ED. इट मीन्स अगर हमें किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और हमने पोटेंशियल निकालना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, जितना डिस्टेंस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वी विल गेट द पोटेंशियल. सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल, पोटेंशियल इज E की वैल्यू ये पुट करो सिग्मा d बाय एप्सिलॉन नॉट. E की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है वाली, सो इट विल बिकम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू d. सो व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज बाय सरफेस एरिया. किया हमने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, बट सिग्मा इज Q बाय A, टोटल चार्ज मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया. सो व्हाट विल बी सिग्मा, सिग्मा इज हियर Q बाय A d एप्सिलॉन नॉट. तो पोटेंशियल हमारे पास ये आया QD बाय A एप्सिलॉन नॉट, QD बाय A एप्सिलॉन. पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस हियर, Q V का वैल्यू दैट इज QD बाय A एप्सिलॉन. उसे Q का कैंसिल, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इन बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D. A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. व्हाट इज A? A is area of the plates. What is epsilon naught? Permittivity of the medium between the plates. What is D? D is the distance between two plates of a capacitor. So this is the capacitance of a parallel plate capacitor. तो ये तो था for air और vacuum. अगर दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो, एयर और वैक्यूम. For any other medium, किसी और मीडियम के लिए कैपेसिटेंस इज दैट इज A एप्सिलॉन बाय D. एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम यूज करेंगे, दैट बिकम्स A एप्सिलॉन अपॉन D. This is the capacitance of a parallel plate capacitor with a medium in between the plates. Okay, it means from this formula we can calculate capacitance of parallel plate capacitor. किन किन बातों पे डिपेंड करता है. So capacitance of parallel plate capacitor एरिया पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ प्लेट्स. एरिया जितना ज़्यादा होगा प्लेट्स का, कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा आप चार्ज को स्टोर कर सकते हो. डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जितना प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा, प्लेट जितनी दूर होगी कैपेसिटेंस उतना कम होगा. सो जितनी क्लोजली आप प्लेट्स रख सकते हो उतना कैपेसिटेंस उसका ज़्यादा बनेगा. और बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, व्हाट टाइप ऑफ मीडियम इज यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, दैट आल्सो इफेक्ट्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल plate capacitor. So this was the today's topic, parallel plate capacitor. I hope you all understood the topic. So do practice, prepare notes. Okay, so thanks, have a nice day.